Okay, so what thing we covered in the last session, just overview that thing first, then we move to the next topic for the DQL, or it's called as a DRL. So till yesterday we think one thing, we create the structure, we insert the data, we update the data, we delete the data. But going forward we learn about the, because the 80% of SQL work on the your DQL, means you are on select command. So in select command we need to the more number of variation, more number of clauses we are going to use. So before that, going to the DQL or the DRL for the data retrieval, any concern, any doubt in a table structure, in a data insertion, deletion, updation, difference between drop, delete, truncate, anything is there? Yeah, Krishna. Good morning, sir. Am I audible to you? Yes, yes. Okay. So, सर एक्चुअली लास्ट वीक में जो भी डेमो सेशन हुआ था ना, तो थोड़ा मतलब ऑफिस के वर्क की वजह से हम ज्वाइन नहीं कर पाए. Okay, don't worry about that. So, We will provide that recorded session to you. So yeah, it's like so as a one session is like as a more than 1 GB, 2 GB recorded there. So I need to consolidate the all sessions, and I will provide the drive link to you guys are downloaded from there only. Okay, so you guys are able to understand if there is the any concern, any doubt while you going with that recording, then there is the issue. Please raise the concern, so I will repeat that session as well. So whatever concern is that, I will make it understandable. Okay. okay. So thing is that like right now like we will see those recorded sessions, but till the time you covered most of the things, then that would be like very difficult to grasp us. So just request you to Yes, give yes. us No some worry time. about that. Don't worry about that. So if you have not understand that concept in that particular recorded session, then I will help you. Don't worry about that. Okay, Okay, thank Raj, you. any concern? Yes, sir. Can you please explain shortly alter command? Okay, fine. We will go for that. Any concern, any doubt? Anyone having the any concern apart from the that concern? So we will go for the update thing. Can I consider as there is a no any doubt? सर ओनली वन थिंग, वो कमिट एंड नॉन कमिट वाला जो कमांड का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा एक बार समझा दीजिएगा. So Akshay, it's a part of DCL. We will cover later on as well. So ओके. for the what, that's the reason I not going through the whole concept, because we have the separate topic for the TCL, transactional control. So no worry about that. So ओके. for the this time, I just need to understand what happened in a delete. That's why I used that rollback and commit. I need to explain that thing. That's why I use that TCL command. But going forward, we have the one separate concept for the TCL. No worry about that. There is the some save point concept is there. There is the commit and there is a rollback. ओके, थैंक यू सर. Yeah. Okay. So for the Raj having the that issue with the update command, correct, Raj? Yes, sir. Okay. Let's move for the update. So there is the, I think so you guys having the little bit confusion between alter and update. Am I right? Yes, sir. I have confusion. Yes. Okay. So first we go with the difference. Update is the DML command, correct? Alter is the DDL command, correct? Yes, sir. Okay. So it's a DML command. It's mean data manipulation. Okay. So when we are going for the any data manipulation command,
It's mean it's completely on your data part. And when you think about the alter command, it is your DDL command. Okay, DDL means data definition. So we are creating the some structure definition to store your data. Okay, it store the data. Sorry, it's a creating the structure to storing the that data. Suppose you have the a bucket of water, and you want to store that bucket of water in a small tank. Means that tank is your structure and the water is your data. Is it clear? Yes. When we apply the then alter, suppose if you want to increase the size of that tank, volume of that tank, length of that tank, it's mean we go with the updation of the structure. We are making the modification over the structure. It's mean that's the DDL. Okay, and DML means what? Suppose you put the more water in that tank, means we need to insert something extra into that tank, means we are in a data form. Okay, suppose you pick the one jar of water from that tank, it's mean the water get updated, the volume of water get updated. Yes or no? Yes, sir. So update is the DML. Once we need to update data, then we are use the update. And alter is the DDL. Once we need to make the changes over the structure. ओके, आपके पास जो टेबल का स्ट्रक्चर है, अगर उसके ऊपर आपको चेंजेस करवाने हैं, देन वी आर गो विद अल्टर. अगर आपको डेटा के ऊपर चेंज करवाने, फॉर एग्जांपल आई क्रिएटेड द वन टेबल हियर. आई विल क्रिएट अगेन. सपोज we have a serial number and we Sir, have if you have shared your Okay. screen, then we are not able to see your screen. Yes, sir. Yes, visible. And now it's visible. Yeah, it is. okay. Okay, suppose I created the one table, serial number name, as it is simple. We have the data set as this. Okay, now we created this here. Okay, so can you explain, who can going to explain that how we create that structure? Suppose table name is bracket. अक्षय So who can going अक्षय to tell me how I created that दिवस structure? जरा बाजू घेऊन बघतो का Mute yourself, guys. झाकण काढून बघ Okay, suppose I want to create one table as a detail and column having the serial number, name, address, and DOB. So who can going to tell me how I create that table? So I write the query here. Yes, sir. Create table. Okay, create table Table name is detail. detail into bracket. To bracket. First column is the serial number. Data type is number. But Size of 20. So I consider like that. Second column is the name. bracket to bracket 20. Suppose third column is the address. It's also having the alphanumerical value. So I press the data type is the varchar. Okay. Suppose I put the size is 100. So next one is the next column is the DOB and it having the data type. Okay, this table is created with that command. Yes. Means your whole structure, this thing is created right now. Correct, Raj? Yes, sir. Okay. The next thing is that I want to insert the data into the this rows.
we have the number of rows, so I need to insert the data into the rows, correct? Yes. So on Excel sheet I inserted like okay. Like that I just inserted the sample one. Okay, so same thing I need to on an Excel sheet we are go and insert manually and we created that row, but I same thing I want to do with the SQL. So how I do it? So how I do it? Insert into Insert values. detail Yeah, values. 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 First column will be Values. suppose I put it as a 3. Second one is your varchar2 means it's having the string. Okay, second column data type. What is the second column data type? It's a varchar2 means we are passing the some string, so I put it into the single Colon. quote. Okay, suppose I put it like this. Okay, second one is the address, it's also having the varchar2. So suppose I want to put the address as Hyderabad. Okay, and third one is that DOB, it's also in the suppose I pass the some DOB like this. Now your data get inserted with this command. यहाँ पे आपका डेटा आ जाएगा 3XYZ हैदराबाद, और आपका जो भी DOB रहेगा, सपोज आई पुट इट एज 6 of June 21. ओके, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। इस तरीके से डेटा आपका इंसर्ट हो जाएगा टेबल के अंदर। नाउ मूव टू द अपडेट। देखो अपडेट अभी किस चीज पे चलेगा? देखो अल्टर करना है तो स्ट्रक्चर के ऊपर चेंजेस हो जाएगा, अपडेट करवाना है तो डेटा के ऊपर चेंजेस हो जाएगा। सपोज आई वांट टू चेंज द नेम ऑफ सेकंड सीरियल नंबर एज अनदर नेम। ओके, so what should be a query? What should be a query? Uh, update table name. Update detail L. set। क्या चेंज करवाना है? नेम आपको क्या चेंज करवाना है? सपोज हम लोगों को बनवाना है महेश, where serial number is equal to 2। मतलब क्या होगा? आपका जो सीरियल नंबर 2 है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे उसका नाम क्या हो जाएगा अभी? महेश। सपोज एक ही क्वेरी के अंदर आपको क्या करवाना है? उसका सिटी भी, एड्रेस भी चेंज करवाना है। यहाँ पे एक सिंपल सा एक चीज लगा दो, कॉमा एड्रेस इज इक्वल टू। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, सेट में आप मल्टीपल कॉलम्स ले सकते हो। ओके, अभी अगर मैंने ये वेयर कंडीशन यहाँ से हटा दिया तो क्या होगा सर? जब मैंने सबके अपडेट हो जाएंगे। सारे के सारे नेम महेश हो जाएंगे और सारे के सारे एड्रेस पुणे हो जाएंगे। रीजन इज दैट कि हम लोगों ने वेयर कंडीशन नहीं लगाया, कुछ कंडीशन के ऊपर नहीं लगाया। ओके, अभी समझ में आया राज? यस सर। ओके, अभी सपोज मुझे ये थर्ड वाला एंट्री नहीं चाहिए तो उसके लिए हम लोगों ने सीखा सर डिलीट फ्रॉम डिटेल वेयर सीरियल नंबर इज इक्वल टू 3। ओके, सेम सिनेरियो, सपोज हमने यहाँ पे वेयर नहीं लगाया तो वो क्या करेगा? होल टेबल को डिलीट कर देगा। अभी डिलीट हो गया तो उसको हम रोल बैक कर सकते, मतलब अंडू ऑपरेशन चला सकते कि बाबा
जैसे ही हम लोग क्या है डिलीट चलाते हैं तो वो डेटा परमानेंटली रिमूव नहीं होता, उसको रोल बैक कर सकते हैं। अभी क्लियर हुआ सब चीजें? यस अभी कोई डाउट है, कोई कंसर्न है? सर, मैंने एक टेबल क्रिएट किया था तो अपडेट कमांड नहीं यूज हो रहा था। गलत लिखा होगा, अपडेट कमांड कुछ तो गलत किया होगा। शेयर करूँ क्या स्क्रीन, एक हाँ मिनट। करो। देखो डेटा केस सेंसिटिव रहता है, डेटा जो है ना वो केस सेंसिटिव रहता है। अगर आपने डेटा टेबल के अंदर स्मॉल डाला है और आप क्वेरी में अपर केस में लिख रहे हो तो वो अपडेट नहीं करने देगा, यही प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर सिंटैक्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो आपका। जस्ट मिनट। आई एम स्टॉपिंग माय शेयरिंग। यस सर कभी कभी इंसर्ट करने के बाद भी वो बोल रहा है नॉट इनफ वैल्यू, तो हाँ, नॉट वो इनफ वैल्यू क्या? मतलब आपके टेबल के कॉलम और आपने इंसर्ट किए वैल्यू, इसमें कुछ ना कुछ इशू है। इधर आपके कॉलम के वैल्यू ज्यादा है और आपके टेबल के इंसर्ट किए वैल्यू कम है, या फिर वाइस वर्सा कंडीशन हो सकता है। इट्स नॉट ए इनफ वैल्यू। अगर आपने, मुझे एक सिंपल सा चीज बताओ कि अगर आपने टेबल को 3 कॉलम बनाए और आप डेटा 4 कॉलम का इंसर्ट कर रहे हो, वो करने देगा? करने देगा? नहीं नहीं। या फिर वाइस वर्सा कर लो, आपने 4 कॉलम डिफाइन किए टेबल के अंदर और आप इंसर्ट कर रहे हो सिर्फ 3 कॉलम, वो सिनेरियो में आपको स्किपिंग ऑफ कॉलम करवाना है कि जितने कॉलम का डेटा डलवाना है उतने कॉलम आपको स्किपिंग कॉलम मेथड में आपको यूज करवाने हैं, कि आफ्टर टेबल की आपको किन किन कॉलम का डेटा इंसर्ट करवाना है। करो राज स्क्रीन शेयर, आई नीड टू सी वेयर द इशू। हो रहा है क्या, दिख रहा है क्या यस, स्क्रीन? या इज विजिबल। सर मुझे कुछ अलग ही दिख रहा है स्क्रीन पे। नहीं नहीं, वो बराबर है, तू तेरा स्क्रीन शेयर कर। किया है मैंने शेयर सर। हाँ, वो अभी मुझे एसक्यूएल प्लस का स्क्रीन दिखा। वही है सर। एसक्यूएल प्लस का स्क्रीन नहीं है। शेयर एंटायर विंडो करना। ओके, एक मिनट। अभी एसक्यूएल प्लस का स्क्रीन दिखाओ। सर यहाँ पे मुझे मल्टीपल स्क्रीन आ रहे हैं तो मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा कौन सा स्क्रीन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो छोड़ो, वो आपको इग्नोर करना था। आपने भी वो सारे लोगों को वो ठीक से जाएगा, उसका इशू नहीं है। आप एसक्यूएल प्लस ओपन करो आपका। डायरेक्टली आपके एसक्यूएल प्लस पे चले जाओ, वो आ जाएगा। सर कुछ तो प्रॉब्लम है, बाद में डिस्कस करेंगे हम। नहीं नहीं नहीं, कर लो अभी, अभी इशू रिजॉल्व हो जाएगा आपका। मुझे वो क्वेरी देखना है कि आपने क्या करवाया है। देखो, स्क्रीन शेयर करने के बाद आपको एक ऑप्शन आता है यूर एंटायर विंडो, उसके ऊपर हाँ क्लिक करवाना है और शेयर करवाना है। ओके, उसके बाद आपका स्क्रीन आ जाएगा और आपको सिर्फ एसक्यूएल प्लस ओपन करवानी है। वो छोड़ो, वो आपके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, बहुत सारे स्क्रीन ओपन हो रहे हैं, उसको छोड़ो। आप सिर्फ एसक्यूएल प्लस को के ऊपर चले जाओ, जाओ उसके ऊपर, ओपन करो उसको। अरे वो नीचे आइकॉन है, उसके ऊपर जाओ ना, उसके बाजू में। हाँ, दिख वो रहा है करो, क्या? क्लिक करो उसके ऊपर। किया ना क्लिक। कुछ तो सेटिंग गलत करवाया आपने। जस्ट मिनट, मैं क्वेरी सेंड करता हूँ यहाँ पे।
हाँ मोनिका बोलो। सर मेरा अभी फ्लैशबैक का प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब वो नहीं हो रहा है। स्क्रीन को शेयर करो तब तक। ओके सर। हाँ ठीक है राज, आपने क्या किया, एक टेबल बनवाया प्रैक्टिस अंडरस्कोर 1, करेक्ट। यस। अभी आपके टेबल में रोल नंबर 1 है। हाँ है ना। हाँ, अभी एरर बताओ, क्या एरर, मुझे कॉपी पेस्ट करो यहाँ पे, एरर क्या आ रही है। सर मैं करूँ शेयर? वो देखो आपने जो एक चीज करवाया है, XYZ के बाद एक कॉमा लगवाया, हाँ, वो क्यों लगवाया? होना ही चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। अगर आप दूसरे कोई कॉलम का वैल्यू सेट कर रहे हो, देन कॉमा कॉलम नेम एंड देन वैल्यू सेट करवानी है, वो नहीं चाहिए, वो हटा के चेक करो। हाँ मोनिका करो स्क्रीन शेयर आपका। नहीं आ रहा है सर। Unknown command, how it's नहीं आ रहा सर। कुछ तो गलत कर रहे हो राज, आपका स्क्रीन देखने के बाद ही पता चलेगा, आप कुछ तो गलत लिख रहे हो। स्क्रीन शेयर करो ना आपका। नहीं आ रहा सर। क्यों कर नहीं रही आ हूँ। रहा है? यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, देखो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ कहाँ पे है। देखो ये वाला ऑप्शन है आपके पास, यू आर प्रेजेंटिंग, ये वाला। यस सर। यस सर। यस हाँ, सर। इसके ऊपर क्लिक करो और आपको करो किया। यस सर। हाँ, उसके बाद आपको एक पॉपअप एंटायर विंडो, एंटायर स्क्रीन आ गया। योर एंटायर स्क्रीन, अ विंडो एंड अ टैब, 3 कॉलम आ रहे हैं। हाँ, तो फर्स्ट वाला एंटायर स्क्रीन ले लो, किया। हाँ सर। हाँ, उसके बाद ऊपर एक पॉपअप आया। शेयर ना आया। हाँ, वो जो स्क्रीन दिख रहा है ना, उसके ऊपर पहले क्लिक करो, किया। यस सर। हाँ, उसके बाद नीचे का शेयर बटन एनेबल हो गया ब्लू में। नहीं सर। क्यों नहीं हो रहा है? आप यहाँ पे क्लिक कीजिए ना, वहां पे वो विंडो पे आपको जो चीज शेयर करवानी है। किया। यस सर। हाँ, अभी आ रहा है सर। हाँ हो गया। जाओ अभी कहाँ पे क्या दिक्कत है दिखाओ। सर मेरे ऊपर नहीं आ रहा है कुछ दिखाना। अरे आपका स्क्रीन मेरे सामने प्रेजेंट है मैडम। हाँ सर। हाँ, आ गया आपका SQL प्लस का। हाँ हाँ सर। हाँ, ये देखो फ्लैशबैक SQL का टेबल CT B4 2 ड्रॉप है। 2 है क्या सर? हाँ, ठीक। फ्लैशबैक टेबल CT B4 2 ड्रॉप, गलत लिखा वापस आपने। टेबल लिखना है क्या सर इधर? हाँ, आप क्या फ्लैशबैक कर रहे हो? टेबल ही फ्लैशबैक कर रहे हो ना। हाँ। फ्लैशबैक टेबल CT B4 2 ड्रॉप। यस, और सेमीकोलन कर दीजिए। मिसिंग आ रहा है सर। मेरी देखो सर एक बार। टेबल नेम के बाद 2 ड्रॉप बिफोर, 2 बिफोर ड्रॉप ऐसे। 2 बिफोर ड्रॉप। ये ओके।
टेबल का नेम नहीं लिखा अभी। टेबल का नाम लिख दो, इनवैलिड टेबल नेम, टेबल का नाम लिखो, लिखो टेबल के बाद। CT 234 ड्रॉप। करो अभी, हो गया अभी फ्लैशबैक? हाँ ठीक है, राज आपका स्क्रीन शेयर करो, आपका स्टॉप करो मोनिका। हाँ SQL प्लस पे जाओ। आ गया आपका SQL प्लस। हाँ हाँ देखो, अभी आपका टेबल का नाम प्रैक्टिस 1 सेट अपडेट प्रैक्टिस 1 सेट नेम। हाँ देखो, अभी आपने क्या करवाया, कहाँ पे एरर है? हाँ, वो वेयर में थोड़ा सा स्पेस दीजिए, अच्छे से क्वेरी लिखिए। वो डबल डबल एसक्यूएल क्यों आ रहा है आपका? डबल डबल आपने डायरेक्टली वो क्वेरी को कॉपी पेस्ट करवाया है और वहां हाँ पे आपका एसक्यूएल प्रिंट होके आ रहा है। हाँ लिखिए, अभी क्वेरी फिर से लिखिए। स्पेस नेम इज इक्वल टू आपको क्या सेट करवाना है? हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं सिंगल कोड को कंप्लीट कीजिए। हाँ स्पेस दीजिए। हाँ वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। करिए अभी। इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम, आपका नेम नहीं है, आपका कॉलम का नाम क्या है? फर्स्ट इट्स अ नेम। फर्स्ट नेम। वो फर्स्ट नेम को चेंज कीजिए। देखो कॉलम के नाम केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन आपका डेटा केस सेंसिटिव है, ये चीज ध्यान में रखो। अभी करिए। बराबर है, करिए, हो गया अभी अपडेट। यस यस, यहाँ पे प्रॉब्लम था। देखो आपके कॉलम के नाम केस सेंसिटिव नहीं है, आप उसको अपर केस में डालो लोअर केस में डालो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। टेबल का नाम भी केस सेंसिटिव नहीं है, बट डेटा आपका केस सेंसिटिव होता है। अगर आपको डेटा आपका कुछ गलत है, मतलब आपने वहां पे स्मॉल केस में डाला है और यहाँ पे आप अपर केस में कर रहे हो, देन इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। ओके, आई ओके बात आज। समझ में? अभी किसी को कुछ दिक्कत नहीं है? नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। थैंक यू सर। या इज इट विजिबल? यस सर। ओके, नाउ पूरे स्क्रीन को क्लीन कर देता हूं। ओके, अभी हम लोगों को क्या करवाना है कि टेबल में से डेटा को रिट्राइव करना है। कि हम लोगों को पता है कि टेबल में डेटा इंसर्ट कैसे होता है, अपडेट कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है, डेटा आपका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, अल्टर कैसे होता है, क्रिएट कैसे होता है, कॉलम का नाम चेंज कैसे होता है, टेबल का नाम कैसे चेंज होता है, कॉलम का डेटा टाइप साइज कैसे चेंज होता है, ये सारी चीजें हम लोगों को पता है। अगर नया कॉलम ऐड करना है तो कैसे करना है, एग्जिस्टिंग कॉलम के ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, या फिर कोई कॉलम है उसका कोई जरूरत नहीं है तो उसके लिए हम लोग ड्रॉप लगा सकते हैं। नाउ कि हम लोगों के पास देखो ये वाला डेटा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो 14, ये वाला डेटा है। ओके, अगर आपको देखना है कि आपके सिस्टम के अंदर कितने टेबल है वो देखने हैं, देखो उसके लिए सिस्टम का एक इनबिल्ट टेबल होता है। आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हो वो एक सिस्टम के टेबल के अंदर चली जाती है वो ऑब्जेक्ट। ओके, उसे कहते हैं डेटा डिक्शनरी। देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर टैब, देखो इतने सारे टेबल है, सिस्टम के पकड़ के आप बना के इतने सारे टेबल है। तो एक काम
काम करता हूँ मैं, हम लोगों को देखना है कि आपके सिस्टम के अंदर कितने टेबल है, एक्चुअल टेबल नेम चाहिए, यहाँ पे उसके सारे कॉलम आ गए। सिलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम यूजर टेबल्स, इतने सारे टेबल है। हम लोगों ने डेमो 14 बनाया, ये क्वेरी सब लोग चला के देखिए, आपके सिस्टम में आपने बनाए कोई टेबल है और या कोई इनबिल्ट डेटा सेट है, चेक कीजिए, ये वाला क्वेरी चलाइए। क्या क्या आया टेबल का नाम आपके पास? चेक कीजिए। कर दिया, ये क्वेरी चलाया आपने, सिलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम यूजर टेबल्स। ये सिस्टम का इनबिल्ट है, इट इज अ डेटा डिक्शनरी फॉर द डेटा ऑब्जेक्ट। ये इसके अंदर आपके टेबल रिलेटेड सारी चीजें रहती है और आपके टेबल में आपका डेटा रहता है। चेक कीजिए इसको। किया? यस सर, किया। हाँ, कितने टेबल आए आपके पास? 8 टेबल्स। हाँ, जो आपने कुछ बनाए होंगे, सिस्टम के पहले 4 है, आपने आपके 4 बनाए होंगे, बराबर? यस सर। ये एक प्रॉपर डेटा सेट है, इसके ऊपर प्रैक्टिस के लिए ये पूरा डेटा सेट बनाया गया। उसके बाद आपने आपके खुद के मन से बनाए होंगे, करेक्ट? यस सर। ओके, नाउ अभी देखो, हम लोगों को सीखना है कि DRL और DQL, डेटा रिट्रीवल एंड is also called as a data query language। ओके, अभी देखो, हम लोगों को सीखना है डेटा रिट्रीवल एंड डेटा क्वेरी लैंग्वेज, इट्स आल्सो कॉल्ड एज अ डेटा क्वेरी लैंग्वेज। देखो, अभी आपको ये चीज पता है कि टेबल के अंदर डेटा कैसे जाएगा, टेबल के अंदर डेटा कैसे स्टोर होगा। वंस इट गेट स्टोर इनटू द टेबल, अभी वो टेबल में से डेटा हम लोगों को देखना है क्या क्या है। सपोज अगर आपको सारे टेबल का डेटा देखना है, देखो ध्यान से सुनो, अगर आपको सारे टेबल का डेटा देखना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैंने एक टेबल का नाम लिया, इसमें से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। ओके, इसके अंदर इतना सारा डेटा है, देखो इतने सारे कॉलम है, ये ईएमपी नंबर, ई नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन। ओके, अभी ये थोड़ा स्कैटर फॉर्म में दिख रहा है, बराबर? समझ में नहीं आ रहा है कौन सा डेटा किसका है, बराबर? अगर इसको आपको सेट करवाना है तो उसके लिए एक कमांड है, ये किया नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सेट लाइन साइज, बट अच्छा दिखना चाहिए, इसीलिए सेट लाइन साइज आपके सिस्टम के हिसाब से रिजोल्यूशन डाल दीजिए और आपका वापस आपका क्वेरी चला दीजिए। अभी आ गया, अभी समझ में आ रहा है डेटा कहाँ का कहाँ है, अभी एक अच्छे फॉर्मेट में आ गया, यस और नो? यस सर। ओके, ईएमपी नंबर, ई नेम, जॉब, मैनेजर। देखो जैसे ही कुछ आप एसक्यूएल प्लस पे काम, देखो एसक्यूएल डेवलपर पे एक स्कैटर फॉर्म में नहीं आता, वो वेल फॉर्मेट में आता है। बट जब भी आप कोई एसक्यूएल प्लस के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको एक ही बार लाइन सेट करवाना है, उसके बाद आपका सारा काम चल जाएगा जब तक आपका सर्वर रिस्टार्ट नहीं होता है। अभी ये पूरा स्कैटर दिख रहा था तो हम लोगों ने उसको क्या करवाया, सेट लाइन साइज इक्वल टू 300। आप करके देखिए, सबके पास ये टेबल प्रेजेंट है ना? सबके पास ये टेबल प्रेजेंट है, यस और नो? Yes, sir. हाँ, करके देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। अगर आपको सारे टेबल के सारा डेटा चाहिए, सारे कॉलम चाहिए, देन वी आर यूजिंग द सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल। ओके, अगर आपको पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, सपोज मुझे चाहिए उसका ईएमपी नंबर एंड नेम, तो वो सिनेरियो में क्या करना है, देखो सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट ईएमपी number and e name from EMP। तो उतने ही 2 ही कॉलम आएंगे, मतलब सिलेक्ट क्लॉज के बाद अगर आपने स्टार लगवाया
तो ये क्या करेगा, आपका सारा डेटा लेके आएगा। उसके बाद अगर आपने कुछ कॉलम स्पेसिफाई किए तो सिर्फ वो क्या करेगा, वो पर्टिकुलर कॉलम का डेटा ही लेके आएगा। समझ में आया? यस और नो? अभी आप मुझे बताइए कि मुझे सिर्फ ना हायर डेट चाहिए फ्रॉम दिस टेबल, क्या करेंगे हम लोग? Select chart. Candidate. सिलेक्ट हायर डेट, स्टार नहीं, हायर डेट हाँ, फ्रॉम एम। मुझे क्या EMP. मिलेगा, सिर्फ वो पर्टिकुलर कॉलम का डेटा ही मिलेगा। क्लियर? किसी को कोई Yes, sir. दिक्कत है यहाँ पे? ओके, ये चीज समझ में आया, हाउ वी रिट्राइव द डेटा, हाउ वी रिट्राइव द डेटा, ये चीज समझ में आया। आपको पर्टिकुलर कॉलम का चाहिए, सपोज आपको क्या करवाना है, देखो हम लोगों के पास ये वाला डेटा सेट है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी। ओके, अभी मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि सिर्फ जिनका डिपार्टमेंट नंबर 20 है, जिनका डिपार्टमेंट नंबर 20 है, देखो यहाँ पे 20 है, 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 ऐसे ही रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले करवाने हैं। ओके, मुझे सिर्फ ऐसे ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाने हैं। तो उसके लिए देखो, सिलेक्ट सारा रिकॉर्ड चाहिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20। सिर्फ 20 का डिटेल सारा, ये देखो आ गया। यस और नो? Yes. यस सर। Yes, sir. ओके, अभी देखो दूसरा चीज, मतलब डेटा रिट्राइवेशन एक सिंपल सा चीज समझ में आया। अगर सिलेक्ट स्टार लगाया तो सारा टेबल के अंदर जितने कॉलम होंगे उसके अंदर जितना डेटा होगा वो सारा आएगा। उसके बाद हम लोग अगर कुछ कॉलम स्पेसिफाई करते हैं, मतलब अगर हम लोगों को कुछ पर्टिकुलर कॉलम का ही डेटा चाहिए, देन सिलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जो भी कॉलम का चाहिए वो कॉलम के नाम डाल के वहां से हम उसको रिट्राइव कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन है कि अगर हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक डेटा ही चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हम लोगों को सिर्फ 20 डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20। अगर मुझे ईएमपी नेम एंड ईएमपी नंबर एंड ई नेम चाहिए, मतलब वो एम्प्लॉय का आईडी और उसका नाम चाहिए, बट उसका डिपार्टमेंट सिर्फ 20 होना चाहिए या 10 होना चाहिए। देखो इसके लिए क्या करना है, आपको वापस से क्वेरी लिखते हैं। अभी रिक्वायरमेंट क्या है, सिलेक्ट ईएमपी नंबर ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर सपोज डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 3 चाहिए। आ गया, सिर्फ उतना ही। ये यही दो कॉलम का डेटा क्यों आया सर, अभी सारा डेटा क्यों नहीं आया? Particularly, sir. बिकॉज वी आर स्पेसिफाइड द कॉलम नेम। सपोज यहाँ पे हम लोगों ने और एक कॉलम का डेटा डाल दिया, सपोज मुझे जॉब भी चाहिए, उनके जॉब भी चाहिए, मुझे जॉब भी आ गया। सपोज मुझे क्या करवाना है, उनका डिपार्टमेंट नंबर भी चाहिए मुझे, आ गया। इस तरीके से डेटा रिट्राइव करना है, मतलब अभी आपके टेबल के अंदर जो भी डेटा प्रेजेंट है उसको ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन क्या डिस्प्ले करवाना है और क्या कंडीशन लगवाना है, इसीलिए हम लोग यूज करेंगे डीक्यूएल। अभी इसके अंदर हम लोगों को नंबर ऑफ वेरिएशन लगेंगे, बिकॉज आपका सीक्वल का 80% काम सिलेक्ट क्वेरी के ऊपर चलता है, बराबर। देखो मुझे आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सिखानी है। आपके एग्जिस्टिंग टेबल से मुझे एक नया टेबल बनवाना है। देखो आपने बैकअप वाला चीज सुना है, यस और नो? Yes. यस सर। Yes, sir. बैकअप वाला चीज आपको पता है कि हम लोग एक चीज का बैकअप बना सकते हैं। उसके लिए ओरेकल के अंदर हम लोगों को एक चीज सीखनी है कि एक एग्जिस्टिंग टेबल, देखो हम लोगों के पास एग्जिस्टिंग टेबल क्या क्या है, ये वाला क्वेरी देखते हैं हम लोग। उसके नीचे ये हम लोगों के पास ऑलरेडी सिस्टम के अंदर ये टेबल है। ओके,
उसमें से मेरे पास ये वाला चीज है कि सर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। ठीक है, इसके जैसा ही मुझे दूसरा टेबल बनाना है, सेम टेबल बनाना है। मतलब वी आर क्रिएटिंग द टेबल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल। मुझे ये टेबल का बैकअप बनाना है, इसके जैसा ही दूसरा एक दूसरे नाम का एक टेबल बनाना है सेम। तो उसके लिए क्या करते हो, देखो टेबल बनाने के लिए आप क्या करते हो, व्हाट इज द query we are going to write for creating the table? Create table. देखो, create table and table name। सपोज मैंने किया एम्प्लॉई डिटेल। ओके, इसके बाद क्या करना है, एज इसके जैसा बनाना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। देखो, आपके पास ये वाला टेबल है, आप नया क्या बना रहे हो, एम्प्लॉई डिटेल। बट एम्प्लॉय डिटेल कैसा बनाना है, जिस तरीके से ये दिख रहा है मुझे ये वाला बनाना है। ओके, इसको एंटर कर दो। ओके, अभी जाके चेक करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। डिटेल्स हो गए, डिटेल है ना, सेम बन गया। देखो ये टेबल का नाम क्या है, अभी सेम टेबल दिख रहा है। EMP टेबल का हम लोगों ने एम्प्लॉय डिटेल सेम टेबल बनाया, यस और नो? करेक्ट। अभी आपके पास और एक रिक्वायरमेंट आएगा, सर वो टेबल के अंदर जो डेटा है ना वो नहीं चाहिए मुझे, वो स्ट्रक्चर एज इट इज चाहिए। ओके, देखो EMP टेबल का स्ट्रक्चर क्या है वो चेक कर लेते हैं। ये EMP टेबल का स्ट्रक्चर है। ओके, मुझे मेरा ऑलरेडी दूसरा जो मैंने टेबल बनाया, एम्प्लॉय डिटेल, सेम स्ट्रक्चर है। अभी आपका रिक्वायरमेंट ये है कि सर मेरा एम्प्लॉय डिटेल के अंदर जो डेटा है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्ट्रक्चर चाहिए। ये क्वेरी चलाने के बाद क्रिएट टेबल एम्प्लॉय डिटेल एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे स्ट्रक्चर एज वेल एज डेटा कॉपी हो रहा है आपके नए वाले टेबल में। लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि आपका सिर्फ एंड सिर्फ आपका स्ट्रक्चर कॉपी होना चाहिए, डेटा नहीं। तो उसके लिए देखो क्या करवाना है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय 1 एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, वेयर यहां पे क्या करवाना है, देखो वेयर 1 इज इक्वल टू 2। ये कंडीशन कभी सेटिस्फाइड होगा, 1 इज इक्वल टू 2? नेचर में ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो सकता है क्या, 1 No. इज इक्वल टू 2? नहीं। कभी ट्रू No, sir. होगा? या फिर A इज इक्वल टू B, ये कभी ट्रू होगा? या फिर 0 इज इक्वल टू 1, ये कभी ट्रू होगा नेचर में? नहीं होगा। इसीलिए एक फॉल्स कंडीशन डाल दीजिए। टेबल गेट क्रिएटेड। अभी देखो, पहले हम लोगों ने नॉर्मल टेबल विद डेटा कॉपी किया था, अभी हमारे EMP1 में डेटा है कि नहीं हम लोग उसको चेक करते हैं। डेटा नहीं आना चाहिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1। डेटा मिला आपको? No. why there is a no data? Due to this thing. Clear? ये चीज समझ में आया, यस और नो? Yes, sir. ओके, बट स्ट्रक्चर चेक कीजिए EMP1 का। EMP1 स्ट्रक्चर मिल गया बट डेटा नहीं आया। देखो मैंने आपको दो चीजें सिखाई यहाँ पे, एग्जिस्टिंग टेबल से दूसरा टेबल बनाना है। मतलब इन ओरेकल इफ यू वांट टू टेक द बैकअप फ्रॉम द वन टेबल टू अनदर टेबल, मतलब एग्जिस्टिंग टेबल का बैकअप बनाना है एक नए टेबल के अंदर, तो वहां पे हम लोग क्रिएट टेबल, नया टेबल नेम एज सिलेक्ट फ्रॉम द ओल्ड टेबल नेम। अगर आप वहां पे वेयर कंडीशन नहीं डालते हो तो स्ट्रक्चर एज वेल एज डेटा बोथ कॉपीड इनटू द न्यू टेबल। बट वहां पे अगर आप फॉल्स वाला वेयर कंडीशन डालते हो, कौन सा भी नेचर में अगर आप फॉल्स वाला कंडीशन डालते हो
तो वहां पे आपका सिर्फ स्ट्रक्चर कॉपी होता है, डेटा नहीं। समझ में आया? ये चीज समझ में आया? Yes, sir. अभी आप मुझे एक चीज बताओ, व्हाई वी नीड अ बैकअप ऑफ द टेबल? व्हाई वी नीड द बैकअप ऑफ द टेबल? क्यों लगता है हम लोगों को टेबल का बैकअप क्यों लगता है? Why we need the backup of the table? डेटा लॉस ना हो जाए इसलिए। हाँ देखो, आप और एक चीज आपके लिए मैं इन एडवांस में बोल देता हूँ, आप जो सिस्टम के डेटा सेट है उसके ऊपर कोई भी डीडीएल डीएमएल ऑपरेशन नहीं करेगा। प्रैक्टिस के लिए आपके खुद के डेटा सेट बनाओ और एज इट इज भी बनाया तो चलेगा, लेकिन उसके ऊपर आप कोई भी डीएमएल डीडीएल नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोगों को ये डेटा सेट आगे लगेंगे तो आगे जाके ये कैलकुलेशन के अंदर इशू हो जाती है। सो फॉर द गुड प्रैक्टिस हम लोग उसको टच नहीं करेंगे। ओके अगर आपको वो जो एग्जिस्टिंग टेबल है ये वाले इसको यूज करवाना है तो इसका एक कॉपी बना लीजिए, सिलेक्ट क्रिएट टेबल जो अभी सिनेरियो मैंने बताया, इसका कॉपी बनाइए और जो कॉपी बनाया है उसके ऊपर आपको जो भी करना है करिए, लेकिन ये डेटा सेट को टच मत कीजिए, बिकॉज आगे जाके हम लोग कुछ कैलकुलेशन कुछ फंक्शन देखने होते हैं, वहां पे इसका लॉजिक आपका और मेरा सिस्टम में डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, तो फिर आपका कंफ्यूजन बढ़ जाता है। समझ में आया ये वाला चीज? अगर मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक डीपीडी टेबल है, ये टेबल का मुझे क्या करवाना है, एक नया टेबल बनवाना है, सेम टेबल, तो क्या करोगे अभी आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ क्या कर सकते हो? सर क्वेश्चन करा दोबारा रिपीट कर दीजिए। देखो आपके पास एक डीपीटी टेबल है सिस्टम के अंदर, उसके जैसा ही मुझे दूसरे नाम का एक टेबल बनाना है सेम विद डेटा, क्या करोगे? सर क्रिएट टेबल टेबल ये टेबल नेम जो भी आपको नया नाम देना है, ऐड सिलेक्ट फ्रॉम द डीपीटी स्टार। टेबल। ओके इसका मतलब क्या है, अगर आपने वेयर कंडीशन नहीं डाला तो स्ट्रक्चर एज वेल एज डेटा दोनों कॉपी हो जाएगा नए वाले टेबल में, बराबर। Yes. अगर वेयर कंडीशन डाला तो डेटा कॉपी नहीं होगा। अगर आपने वेयर कंडीशन 1 इज इक्वल टू 1 डाला तो डेटा कॉपी होगा या नहीं होगा सर। होगा? ट्रू। ओके तो अगर आपको वही डेटा सेट के ऊपर प्रैक्टिस करवानी है तो आप वहां पे उसको क्या करोगे, उसका कॉपी बना के करो, वो डेटा सेट को टच मत करो, क्योंकि इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग विद सम ऑपरेटर्स, कुछ डेटा रिलेटेड इश्यूज हम लोग देखने वाले हैं, तो वहां पे आपका सिस्टम और मेरा सिस्टम अलग अलग आउटपुट देता है, तो इससे क्या होता है आपका कंफ्यूजन बढ़ जाती है। ओके किसी को कुछ डाउट कंसर्न? सर आज जो आपने कमांड सिखाई ये मतलब किस कैटेगरी के अंडर आएंगे? DQL आपने बताया था ना? यस इट्स अ सिलेक्ट कॉलम, जो भी क्वेरी के अंदर आपका सिलेक्ट क्लॉज आएगा इट्स अ DQL और इट्स कॉल्ड एज अ DRL, डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज और डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ओके 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 अभी भी किसी को डाउट कुछ कंसर्न है? और ये आपका लास्ट डेमो सेशन था। इन फ्रॉम द नेक्स्ट वीकेंड, फ्रॉम द सैटरडे वी हैव द आवर ओरिजिनल सेशन। बिफोर दैट मेक श्योर मेक योर रजिस्ट्रेशन पार्ट। आपने जो कौन सा वो ऐप के ऊपर रजिस्ट्रेशन किया वो वाले नहीं चाहिए सर मुझे स्क्रीनशॉट, आप आपकी मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट कर लीजिए। ओके दे विल टेल यू हाउ वी create the registration and all stuff। ओके ये आपके डेमो सेशन यहाँ पे खत्म हो गए। Okay, sir. ओके सर।